We have about 30 people have joined us, so we'll just wait for another few minutes because many people are under confusion. I request whoever is here, if you could share the link with people who you know who wanted to join on WhatsApp, etc., so that it becomes convenient for them to join in. The link has been shared on the FB page from where all of you would have come here. And also for the panelists, the link was shared on the group, so they would have it with them. We request whoever is joined to kindly switch off their videos and audio, stay muted, and it's better if you switch off your video also so you save on bandwidth. And any questions which anyone wants to ask, they can put it in the chat. The panelists will take up the questions. People are joining in now. Really sorry for the technical glitch, but I guess we are used to facing a lot of glitches in life now, and we're getting used The to biggest glitch is already here. Pinch of salt is helping us. We always find that pinch of salt to correct the dish taste. Okay, I think so. We'll start now, unfortunately, because I don't want all the people to be delayed. A very good morning and very good afternoon to everyone here. Thank you for joining this special session organized by Indian Chamber of Commerce, which is going to speak about the Indian textile industry, the challenges, lockdown, and how to sustain and grow, and more specifically about the Bengal industry, as all the panelists are from Bengal. So we'll be focusing more on the Bengal issues while keeping the overall Indian national perspective and the global perspective in mind. I know we are facing challenging times. These are unprecedented times. किसी ने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी कभी हो सकता है कि 25-30 दिन से घर से भी नहीं निकले बहुत सारे लोग, और अभी भी पता नहीं है कब निकलेंगे. खासकर एल्डरली लोग को साफ हिदायत है कि वो घर से ही काम करें. We are learning how to do. We would have never thought. We have people who are now 70 plus getting very comfortable with Zoom and all other online media tools. So we all are learning the new way of doing business. We are finalizing our accounts. घर में बैठे बैठे चार्टर्ड अकाउंटेंट से लोगों की मीटिंग हो रही है. अभी एक जन का मैसेज आया, मैं अपने सीए से मीटिंग में हूँ इसलिए अटेंड नहीं कर पाऊंगा. मैंने कहा आप बुला लिया अगर, बोला नहीं सर जूम पर हूँ. तो अब ये नया एक कॉन्टेक्स्ट हो रहा है. फोटोग्राफ दिखता है, चेहरा दिखाइए,
अभी किसी ने कहा डॉक्टर भी कंसल्टेंसी जूम से कर रहे हैं, पेशेंट वहां है क्लिनिक में, नर्स है, डॉक्टर बोलता है, वो फीवर नापती है। so the whole world is changing. जो चीजें हमने सोची भी नहीं थी वो भी हो रही है. We all know textiles is expected to go through a very rough patch क्योंकि discretionary spending है. Unlike groceries, FMCG, textiles खरीदना is not so important. Apparels खरीदना is not so important. It can be delayed. Malls शायद जून तक बंद रहेंगे. प्रदीप जी आपका समय आएगा. You can disagree. लेकिन they are certain. लेकिन जब हम बैठे हैं लॉकडाउन में फिर भी we are consuming. Inner wear is being consumed. Casual wear is being consumed. Probably we're not wearing formal shirts. Probably we are not preparing to go for a marriage, but we are still wearing clothes. So ऐसा नहीं कि apparels का consumption खत्म हो गया है. It may be deferred by a bit, and we don't know when we open. We may be on for surprises. हाँ दुकानों पर लोग कम जाएंगे. Maybe please mute रहे. दुकानों में हम कम जाएंगे, लेकिन हो सकता है ऑनलाइन की परचेज बढ़ जाए. 20-21 तारीख से ऑनलाइन शुरू होने वाला है इन अ कंट्रोल फैशन. तो वी आर गोइंग टू सी अ लॉट ऑफ चेंजेस हैपनिंग. और हमारे साथ आज 4 दिग्गज पैनलिस्ट हैं जो बंगाल में अपने अपने हिसाब से लीडर्स हैं और बंगाल की इंडस्ट्री फ्लैग पूरे इंडिया में फैलाते हैं और प्लस और इवन ग्लोबली. वी वर जस्ट डिस्कसिंग नाउ, एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं. सो वी विल बी टॉकिंग टू ऑल ऑफ देम. हम पहले कुछ मिनट एक एक का ओपनिंग रिमार्क्स लेंगे, पर क्योंकि हम इसको एक बोरिंग भाषण नहीं बनाना चाहते हैं, तो हम आपके क्वेश्चन आंसर्स लेंगे कि आप लोग के जो सवाल है उसका पैनलिस्ट जवाब देंगे. प्लीज काइंडली सब अपने आप को म्यूट कर ले और आपके we hope we will be able to give you some guidance of how to move forward and how the leaders are thinking to move forward. Now I would like to start the session. Before that I'm unmuting everyone. जिसको बोलना है he can unmute himself. Yeah. So first of all, I'm going to move on to Vikas ji, who is the senior vice chair of ICC and is also leads a very dominant brand, Rupa, which is all well known to us. He is the president in Rupa and Company. Vikas ji, we would like to know your opening views. How do you read the challenges and the opportunities which COVID-19 is going to give to the textile industry and specifically to the Bengal textile industry? On to you, Vikas ji. Thank you, everybody. Good morning, everybody. Like as we all know, आपने भी बताया संजय जी कि this is all unprecedented. And in terms of timing, this can't be like the economy was already facing the slowdown challenges, and top of that, it has hit us on a very wrong timing in terms of seasonality. March, April, May is a very peak season for hosiery and textiles. This is acting like a double-edged sword, which is both ways in terms of our health. And of course, we are all facing labor issues, inventory issues, working capital issues. And I believe is the only way to survive in this difficult time is to preserve our cash flow, our resources, taking care of our employees as per best of our individual abilities, and not like we follow the same system. And cutting costs, like for our own company, we have decided to cut on advertisement budget to a great extent, and better operational efficiency, discipline leverage, controlling outstanding is very important. विकास जी थोड़ा सा तेज बोलिए, लोगों को सुनाई नहीं दे रहा है. Proper cash flow is the key to survive this moment of crisis. As a host, you can unmute everybody. Yeah, they are unmuting themselves. बोलिए. Okay, sorry. Frankly, in real terms, it is impossible to predict anything at the moment. Going forward, what will depend upon extraordinary time. Measures are required, like Sorry, Vikas ji, you can continue. I had to mute everyone.
So in these extraordinary times, calls for extraordinary measures and stimulus package for businesses and for workers is long waited from government. And what we feel, what an information we got to the chamber, like maybe coming days, that announcement should be made for MSMEs and for the large corporates. And the only silver lining is because of the emotional economic backlash against China, we see a huge export opportunity to countries like Europe and US as an alternative sourcing hub from China, then China. And we also have a significant opportunity in technical textiles, as the PM is mentioning every time. And now, of course, the PP clothing is a great opportunity as well. And the only thing, and as you have said, like all adversity comes with an opportunity, and I'm sure a lot of new doors will open, and we all together will come out of this and come out successful and stronger. Yeah. Okay. Thank you, Vikas ji. Few things when we open up. Yeah. No, please continue. Please continue. The only thing, and a few things we need to keep in mind when we open up is like safety and health measures. Focus on the bottom line and not top line. Prudent thinking and preservation is most important. And COVID insurance for employees and whatever decisions we are making in terms of for our employees and all, that human element is very important now with empathy. So these are the few messages what I would like to convey about this. Thank you, Vikas ji, for your comments. If you could all, I would just like to summarize what Vikas ji said for the benefit of everyone. A very important point, and which also I've been also talking to the government, and I know Vikas ji through ICC has also been doing it. We expect, I know we all are getting impatient हो रहे हैं कि सरकार कुछ करेगी या हमारे लिए नहीं करेगी. कल RBI का भी speech आया, but it was pretty disappointing. People were wondering कि हमारे लिए क्या है. बट सरकार वेरी सून एक फिस्कल पैकेज बना रही है. हम लोग का रोज डिस्कशन हो रहा है टेक्सटाइल मिनिस्टर नितिन गडकरी जी से, सेक्रेटरी ब्यूरोक्रेट से, और काफी उन्होंने हमसे सजेशन भी लिए हैं. और हमें उम्मीद है सूनर दैन लेटर, कोई भी टाइम कोई भी मौके पर फिस्कल पैकेज अनाउंस हो सकती है. सो लेट्स ऑल वेट फॉर इट. उम्मीद है वेजेस, इंटरेस्ट को और हमारे बिजनेस को होल्ड करने के लिए सरकार कुछ न कुछ करेगी, बट वी नीड टू वेट एंड सी क्या क्या करती है. सो दैट्स वन पॉजिटिव थिंग. विकास जी ने एक जो बहुत अच्छी बात कही कि चाइना के लिए एक एंटी फीलिंग आ रही है. काफी कस्टमर भी कह रहे हैं कि आप ये चीज बना के दे सकते हैं. तो जो लोग एक्सपोर्ट में हैं उनको बड़ा फोकस करना पड़ेगा अपने कस्टमर के साथ, वो कि व्हाट आर दे बाइंग फ्रॉम चाइना एंड सी वेदर वी कैन रिप्लेस इट कॉम्पिटिटिवली. हमने सरकार को भी कहा है कि अगर आप कोई स्पेशल एक्सपोर्ट पैकेज निकाल सके फॉर 1 year, ताकि वी कैन गेट कॉम्पिटिटिव एंड गिव कॉम्पिटिशन टू चाइना एंड समहाउ ट्राई टू इंक्रीज. अगर एक्सपोर्ट का थोड़ा सा भी इंक्रीज हो गया है तो हमारे जो डोमेस्टिक मार्केट में जो स्लो डाउन रहेगा फॉर अ फ्यू मंथ्स, हम उसको आराम से मेकअप कर सकते हैं. पीपीई का विकास जी ने बताया है, और आप लोग में से काफी लोग मास्क ऑलरेडी बना रहे हैं. बट एक ही हिदायत है कि काइंडली बी श्योर ऑफ क्वालिटी, बिकॉज वी आर किसी की जिंदगी उस पर निर्भर है. तो ऐसा मास्क ना बनाए जो काम ना आया, विच डज नॉट डू द फंक्शनैलिटी. थोड़ा उसको स्टडी करके फिर मास्क बनाए ताकि वो एक जेन्युइन यूज के लिए काम आ सके और फॉल्स सेंस ऑफ किसी को प्रोटेक्शन ना मिले. नाउ आई वुड लाइक टू मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट पैनलिस्ट. अनिल जी बुचासिया जी हैं हमारे साथ, जो APC के बड़े ही प्रमुख मेंबर हैं and who has been very active in Bengal working with the government, and also who has been APC में वो बड़े कमिटी में हैं, एक्सपोर्ट कमिटी को हेड भी कर शायद अभी भी कर रहे हैं, प्लस अमृत एक्सपोर्ट के नाम से अपनी कंपनी चलाते हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक प्रोसेसिंग हाउस भी चलाते हैं. तो अनिल जी, वी वुड लव योर ओपनिंग व्यूज. आई थिंक सो आई हैव अनम्यूटेड यू, जस्ट चेक अगर आप हुए हैं या नहीं हुए. Anil ji, please. Thank you, Sanjay ji. Thank you very much for inviting me to this discussion. देखिए, we know, none of us, we don't have a crystal ball to know what's going to happen tomorrow. So this COVID is, of course, something which the world was not prepared for, and none of us prepared for. Going forward, as you rightly mentioned. Hello. हाँ, बोलिए. We can hear you. Yeah. As you very rightly mentioned, कि there is going to be some kind of emotional and economic backlash against China. तो भगवान एक दरवाजा बंद करता है तो कुछ और तो खोलेगा ही.
So China is now producing almost exporting more than $90 billion worth of 190 billion. Sorry, the total global trade of textiles is almost 360 billion. Out of this, almost 50 billion is cornered by China. और उसमें से अगर 190 बिलियन में से इवन 10%, उसमें से 190 बिलियन टेक्सटाइल्स, उसमें से 90 बिलियन रफली गारमेंट्स का है. उसमें से even if 10% migrates to India, which could be 9 billion in terms of value, which is India now is exporting almost 16 billion. So we could see an addition of almost doubling our export figures. But that would again be very, very, subjective depending upon how we react to this crisis. As you very rightly said, we have to, pull up our socks. We have to become more professional. We have to commit ourselves to our business. We have to engage ourselves with the business in a greater way. And the government, of course, has to come forward with some kind of stimulus. The government has to recognize what this garmenting and opportunity could mean, because we are a industry which employs maximum number of people per say crore of investment. We employ almost 70 to 80 people, whereas a capital intensive industry employs only 1% investment. So this could lead to a wave of employment not seen since the green revolution that happened in India. So we could see each house, each home in village making garment, because this is basically not a quality industry. But here the government has to recognize. See, India is not a very rich country where we could be expecting huge stimulus package from the government. In any case, business people are known to have strong resilience and are known to survive in spite of the government and not because of the government. Whereas stimulus package is all very welcome. Of course, I will be a beneficiary to it. But we have to look things beyond, because if the stimulus package comes, tel to tilo se niklega. Ultimately, we will be at the receiving end in times to come with a corona cess or a corona tax or something something similar. So more important is that if the government recognizes the opportunity that it could create for employment generation, because India is so favorably placed in terms of the population, the demography is so much in favor of India. We have almost 70% people below the age of 35, and we have not unlocked the potential of the women who are natural stitchers, and women workers are still locked up in the houses. If you could unlock that potential, India could be well on its way to a greater success. One thing is for sure, which we all know, Japan has already started to incentivize its industries who would like to shift out of China. ये चीज होगी. This is going to move forward. There is a huge emotional. आज हमारे घर में मेरी wife बोलने लगी है that we cannot support, we cannot buy things coming from China. Something like this. So this kind of feeling is quite omnipresent. It is present everywhere. You talk to Japan, you talk to Europe, you talk to America, you talk to any customer, and there's a of course everybody now is talking only about COVID, but beyond this there's a sensation which says that no, going forward we have to change the way we are going to buy our things. We have to change the way we have been living, and we are not going to buy the cheapest. We are going to buy something which is ethically more correct, which is going to be more sustainable for the future. India being a very, very strong democracy, it sends all the right messages. Thank you, Sanjay ji. If you want I just wanted to speak on something. Anil ji, thank you so much for your views and comments. As usual, very candid, very foresight, with a lot of foresight. And I'm sure everyone is going to gain from it. Now, can I request Pradeep ji Arora? Pradeep ji, can you unmute yourself and please आप अपने opening comments दें. आप एक MSME से काफी जुड़े हुए हो, और MSME वाले बहुत लोग यहाँ हैं जो सवाल भी पूछ रहे हैं कि हम क्या करें, how do we get out of this whole problem with limited resources. Pradeep ji, on to you. Pradeep ji. Yeah, now it's fine. Yeah. देखिए, मेरा इसमें ये कहना है कि कोरोना का जहां तक सवाल है, बिकॉज सारी परेशानी कोरोना की वजह से आई है,
और हिंदी में एक मुहावरा है कि ऊंट किस करवट बैठता है, तो ऊंट तो बायां दायां बैठ सकता है, लेकिन ये कोरोना तो राउंड शेप है, ये कौन करवट बैठेगा ये तो किसी को मालूम नहीं। अब सवाल इस बात का है ये प्रॉब्लम कितने दिन चलेगी, बिकॉज जहां तक हमारे पार्क को भी खोलने की बात हो रही है, हमारे लेबर कम है, एक एक यूनिट में एनीथिंग फ्रॉम 20% टू 2 साल भी काम करते हैं। वहां पे भी जितने के जितने मैन्युफैक्चरर हैं सबको डर लग रहा है कि क्या होगा, कैसे होगा, कितने टनल बनाए जाएं, कितना सिक्योरिटी किया जाए, ये तमाम सेफ्टी हाइजीन के मास्क तो दिए जाएं, दीज आर बेसिक, सैनिटाइजर दिए जाएं, दीज आर बेसिक, सोशल डिस्टेंसिंग रहेगी, क्योंकि अभी कोरोना का जो चाइना की भी रिपोर्ट है, साउथ कोरिया की रिपोर्ट है, केसेस दोबारा आने लग गए हैं। तो लाइफस्टाइल प्री कोविड एंड पोस्ट कोविड देयर विल बी अ डिफरेंस इन लाइफस्टाइल, दैट इज देयर टू स्टे। नाउ हाउ आर वी कैन एडजस्ट एंड वी कैन राइज आवरसेल्व्स टू द ओकेजन्स कि कितना हम कर सकते हैं, कितना करना चाहिए इन सारे के बीच में। नाउ एवरी यूनिट, छोटा हो बड़ा हो, विल हैव अ प्रॉब्लम। उसको लेबर को पैसा देना है, हमारी एक से बात हो रही थी, उसके 4000 लेबर है, अगर वो मिनिमम वेजेस भी देता है 4 करोड़ रुपया उसका निकलता है, 250 करोड़ का उसका बिजनेस है। नाउ 250 करोड़ में उसका अगर मान लीजिए 50 करोड़ इसमें जाता है, 20% ऑफ हिज एक्सपेंसेस विच विल गो अप बाय 2 महीने का उसका देता है 5% एंड हिज प्रॉफिट इज 5%, तो एंटायर ईयर्स प्रॉफिट इज वाइप्ड आउट। ये एक बेसिक, प्लस बैंक से आपको कितना लोन मिल सकता है, आगे आपके ऑर्डर, कितनों के ऑर्डर भी नुकसान हो रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां वो कह रहे हैं कि छोटे छोटे तो फिर भी ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनियां हाथ धो के बैठ गई हैं, वी कांट डू एनीथिंग, वी वोंट टेक द सप्लाईज। दीज आर हार्श रियलिटीज। अब रही बाकी एक नॉर्मल, अगर एक बात करते हैं जो एमएसएमई सेक्टर की बात कर रहे हैं, जिसको हमेशा से उठाते रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए हम कम लेबर से काम कर सकते हैं। जहां तक ऑर्डर का सवाल है, कैंसिलेशन का सवाल है, हमारी जैसे आइटम, जिस समय आपकी बात जो आप कह रहे थे कि हमारे जो सेल में तो कमी आएगी ही, बिकॉज जहां पर लोग 10 पीस खरीदते थे अभी 5-7 पीस लेंगे, चाहे अंडर गारमेंट्स हो, वी आर इनटू बेबी वेयर। नाउ लाइफ ऑफ बेबी वेयर इज ओनली 3 months, आफ्टर 3 months यू नीड अनदर सेट। ऑलरेडी 2 महीना का लॉकडाउन है, छोटा बच्चा आपका बड़ा हो रहा है, आप उसको कपड़े से लपेट के तो रखेंगे नहीं, यू विल हैव टू बाय। ऑलरेडी हमारे फोन आ रहे हैं कि भाई हमारा ऑनलाइन जो है उनका सप्लाई करिए, रिटेल जो कि खुल नहीं रही है, कोई बात ही नहीं हो पा रही है। दीज आर रियलिटीज, जिसको हम लोग कैसे करेंगे, सबकी प्रॉफिट तो कम होगी, बैंक से आपको कैसे आप सुविधा ले सकते हैं। जहां तक खर्चों का सवाल है, बड़े बड़े ब्रांड तो अपना ऐड कम कर दिया, उन्होंने अपने बचाने की व्यवस्था कर ली, हमारा छोटा ब्रांड तो कोई भी एक आदमी आईडी नहीं करता। ये सारी जो दिक्कतें हैं ये आपको फेस करनी है। जहां तक आप कह रहे हैं कि सरकार से कुछ मिल जाएगा, वी कैन आस्क द गवर्नमेंट कितना देगा, क्या देगा। 15,000 से नीचे का खाली उन्होंने कुछ दिया है कि अगर 100 आदमी है तो आपको 90% आपके 15,000 से नीचे होने चाहिए, तो आपको हम पीएफ दे देंगे। ईएसआई की कोई बात नहीं हुई है। वो वाली एक चीज, वो भी कितनों पे लागू होती पता करते हैं तो मालूम नहीं, बट स्मॉलर जो एमएसएमई है उसमें बहुत लोगों को इसका फायदा मिल सकता है, बट दैट इज मिनी स्कूल। हम लोग का जो यहाँ तक मेरा कैलकुलेशन है, it will go down by, if the everything remains the same, even then our profit margin is going to go down by 5%, which is minimum I'm talking about. अब इस हालत में हम लोग को कब खुलता है, कैसे खुलता है, कितना खुलता है, ये सारी चीजें हम लोग को अभी बिल्कुल क्लैरिटी है ही नहीं। ये सारा जब तक लॉकडाउन खुलेगा उसके बाद हम लोग कितना लॉजिस्टिक आपका सही होगा, कितनी रिटेल दुकानों में जाएगा, वहां से पेमेंट कितने दिनों में आएगी, कितनी पुरानी पेमेंट, दीज आर ऑल विच वी विल हैव टू, कहते हैं ना, क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट कम्स। देखा जाएगा। ऑफ कोर्स ये मानवता की इतनी बड़ी, पिछले 1918 में स्पेनिश फ्लू हुआ था, उस समय 5-7 करोड़ लोग नहीं थे, अब ये एक दूसरी त्रासदी आई है, इसको हम लोग कैसे झेल पाएंगे, कितना झेल पाएंगे, सरकार हमको सहयोग करेगी या हम सरकार को कितना सहयोग कर सकते हैं, ये भी हम लोग को सोचना है। इन्हीं सब शब्दों के साथ, क्योंकि अभी जितनी अनिश्चितता बनी हुई है उसमें मेरे ख्याल से सिवाय इसके कि वो उठ किस करवट बैठता, उसी बात पे वापस आकर कि हम लोग कितना कर पाए, कितना होगा, खुलेगा क्या देखा जाएगा, लेकिन हाँ नुकसान है, उस नुकसान की भरपाई। अब जब खर्चे कम करने की बात होती है, खर्चा हम लोग के कम हो ही नहीं सकते जिनके खर्चे ऑलरेडी कम है, लेबर को आपको कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा। अब बाकी कितने में आप भी अपना बच सके और लेबर को भी बचा सके,
ये आपको अब सोचना है। इसके आगे में हम लोग कितना, जो पोस्ट लॉकडाउन है उसमें हम लोग कितना कर सकते हैं, ये हम लोग की सबसे बड़ी एक अभी चैलेंज हम लोग के सामने। दैट्स ऑल, थैंक यू। थैंक यू प्रदीप जी, आप एज यूजुअल ऑलवेज वेरी फोर्थराइट, एकदम सीधा बोलते हैं। बिफोर आई मूव ऑन टू आवर लास्ट पैनलिस्ट, द फोर्थ पैनलिस्ट, मैं कुछ और जो चीजें मैंने सुनी आप लोग के साथ शेयर करना चाहूंगा। फर्स्टली किसी ने सवाल पूछ रहे हैं व्हाट इज इंपॉर्टेंट, कैश फ्लो या पीएनएल। देखिए, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर कैश फ्लो। बैंक में पैसे होने चाहिए ताकि आपके जरूरी खर्चे निकल सके, क्योंकि बिजनेस तो जो है, लेकिन जब खुलेगा तो आपको रोटेशन करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि डिमांड जीरो हो जाएगा रिटेल में, एक्सपोर्ट में एक अलग सिनेरियो है, पर रिटेल डोमेस्टिक में ऐसा नहीं है कि कोई माल मांगना बंद कर देगा। तो इसलिए जरूरी है कि आप अपना कैश फ्लो प्लान अच्छे से करें, उसके बाद में पीएनएल देखें। जैसे प्रदीप जी ने कहा, हो सकता है 6 महीने आप कुछ ना कमाए, 12 महीना कुछ ना कमाए, बट एज लॉन्ग एज यू डोंट लूज मनी, यू कैन मेंटेन योर कैश फ्लो। आई एम श्योर गॉड विल गिव अस मेनी मोर अपॉर्चुनिटीज टू ग्रो मच फास्टर। आपने अगर आईएमएफ का डेटा देखा होगा, इंडिया का जीडीपी ग्रोथ वो कह रही है इस बार शायद 1.9% ही हो, बट दे आर लुकिंग एट अ वी शेप्ड करेक्शन, ताकि नेक्स्ट ईयर वी आर लुकिंग एट अ 7.5% जीडीपी ग्रोथ, नॉट ओनली फॉर इंडिया, फॉर द ग्लोब। सो एक बार थोड़ा ठहराव आएगा, रीसेटिंग होगी, बट देन देयर इज गोइंग टू बी अ शार्प ग्रोथ। पर जो लोग सरवाइव कर पाएंगे, रह पाएंगे, वही इस ग्रोथ का एडवांटेज ले पाएंगे। सो प्लीज बी केयरफुल अबाउट दैट। और जैसे प्रदीप जी ने कहा, बेबी वेयर है, इनर वेयर है, प्लीज लुक एट कैटेगरीज जिसकी जरूरत कंज्यूमर को ज्यादा होगी, जिसके लिए कंज्यूमर दुकान में आएगा, चाहे आप रिटेलर हो या होलसेलर हो या मैन्युफैक्चरर हो। यू हैव टू एडजस्ट योर परचेजिंग मैन्युफैक्चरिंग प्लान अकॉर्डिंगली कि किस चीज की डिमांड ज्यादा होगी। अगर आप अब शादी का वेयर बना रहे हैं, मैरिज वेयर बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसकी डिमांड कुछ महीने कम रहेगी। और अगर शादियां होती भी है तो वन विल प्रॉब्ली यूज द ओल्ड क्लोथ्स एंड नॉट वांट टू बाय न्यू क्लोथ्स। सो प्लीज रीफोकस योर पोर्टफोलियो, स्टॉक को कम कीजिए। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अभी कुछ साल से हम लोग टॉप लाइन के पीछे भाग रहे थे कि सेल कैसे बढ़े, कमाई कम भी हो, कंपटीशन में माल बेच रहे थे। लेकिन अभी जब यहाँ पर इसके कारण, सोशल डिस्टेंसिंग के कारण लेबर इश्यूज भी आएंगे, मे बी बंगाल विल हैव एन एडवांटेज ओवर अदर प्लेसेस, बिकॉज हमारे पास लोकल लेबर काफी है, अनलाइक अदर प्लेसेस लाइक तिरुपुर, लुधियाना, जहाँ मैक्सिमम लेबर माइग्रेंट है और जो चली गई है उनको आने में टाइम लगेगा। सो बंगाल इंडस्ट्री में एक्चुअली सी एन एडवांटेज ओवर अदर्स। इवन जो बिहार के लेबर है, दे मे प्रेफर टू कम टू कलकत्ता रादर देन गो टू तिरुपुर और लुधियाना, बिकॉज जो 1 महीने के लिए या 40 दिन के लिए लॉकआउट हो गए हैं वहां पर, उनकी जो बेचैनी है, उनकी जो मानसिकता है, they will like to work closer to home. For Bengal, this may be actually a great opportunity, while the old clusters may actually find it difficult. Growth तो बहुत दूर की बात है, even to sustain production. So इस बात को ध्यान में रखें। और जब लोग कम है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, तो वो माल बनाइए जिसमें आपकी प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा है, जिस के कस्टमर आपको पेमेंट टाइम से देते हैं, और जो आप टॉप लाइन सिर्फ सेल्स ग्रोथ के लिए जो काम करते थे, जिसमें मार्जिन हो या ना हो, कि भाई नंबर बढ़े, हमें अच्छा लगे, उस काम जिसमें पेमेंट लेट आ रहा था, उस काम को होल्ड करें, क्योंकि उसमें कोई कमाई नहीं है अनलेस वहाँ, और खासकर एमएसएमई जहाँ ओवरहेड्स ज्यादा नहीं है, जहाँ आपको वॉल्यूम के पीछे भागना जरूरी नहीं है टू कवर योर ओवरहेड्स, काइंडली सी एंड रीवर्क योर ओन बिजनेसेस। और ये काम अभी करें, बिकॉज जब लॉकडाउन खुल जाएगा तो इतनी समस्याएं आने वाली है, हम घर बैठे तो सिर्फ समस्याओं के बारे में सोच रहे हैं, फिर वो रियलिटी में आएगी। इसलिए अभी घर में बैठे हमें सॉल्यूशंस के बारे में सोचने चाहिए। 1 2 3 4 दीज आर द 5 प्रॉब्लम्स। ऊंट किस तरफ बैठेगा हमें नहीं पता है, लेकिन जिस तरफ भी बैठे हमें उसके ऑप्शंस बना के रखने चाहिए कि ये प्रॉब्लम, इसके ये 3 ऑप्शन है, फिर जिस तरफ ऊंट बैठेगा वो ऑप्शन हम चूज करेंगे, तो तब हमें शांति से टाइम नहीं मिलेगा। आज हम किसी को फोन करके बात भी कर सकते हैं, डिस्कस भी कर सकते हैं। मैंने तो बहुत अच्छे सजेशन मेरे मैनेजर्स और स्टाफ ने मुझे दिए हैं अब हाउ टू फेस दिस सिचुएशन। सो मैं नहीं समझता सिर्फ हम ही ज्ञानी बैठे हैं, जो ओनर्स बैठे हैं, वी शुड टेक सजेशंस फ्रॉम एवरीवन अराउंड अस, बिकॉज़ वी डोंट नो हु इज गोइंग टू गिव अस व्हाट पर्ल ऑफ विजडम। And now I'd like to move on to Alok ji.
Alok ji, please kindly enlighten us. Alok ji East India Garment Manufacturers and Exporters Federation के president हैं, बहुत सालों से इस business में है रेडीमेड के, और export, domestic सब type का काम करते हैं. And because he is heading such a large association, उनको जो नहीं भी कर रहा है उसके बारे में भी idea है. So Alok ji, please tell us, because garments are going to be more challenging, unlike the baby wear or probably inner wear. How are you all planning to face it, and what's your advice to people? Thank you. Alok ji. Well said. नमस्कार. आपने जो सवाल किया सस्टेनेबिलिटी और ग्रोथ, देखिए आज की जो परिस्थिति है इससे हम कब निकल पाएंगे ये बोलना बहुत मुश्किल है. हम लोग आशा यही कर सकते हैं कि जल्द से जल्द हम इस परिस्थितियों से निकलें. हमारा देश जो है वो 135 करोड़ की आबादी का देश है, जो कि एक और हमारा देश त्योहारों का देश है. तो हम जो सोचते हैं कि भाई ये परिस्थिति से जब हम निकल जाएंगे, कोविड-19 से जब हम निकल जाएंगे, तो हमारे लिए हमारे पास इतने त्योहार आते हैं, इतनी मतलब लगन शादियां है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है, तो हमें हर समय मिलता है. और हम जहां तक सोचते हैं कि ये प्रॉब्लम का जो समय है, जब तक नहीं निकलता है तब तक ये परेशानियां हमको झेलनी पड़ेगी. और सरकार भी हमें सहयोग कर रही है, ऐसा नहीं कि सरकार नहीं कर रही है. सरकार प्लान कर रही है, और एक दिन में सरकार भी कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि सरकार को हम अपनी क्षेत्र की बात कर रहे हैं, पर सरकार को तो पूरे भारत की जनता को देखते हुए काम करना है. सबसे तो जहां तक गारमेंट का सवाल है, गारमेंट मतलब जो बंगाल गारमेंट की हम बात करते हैं, तो ये एक मतलब अनऑर्गेनाइज सेक्टर है. यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि लोग बहुत छोटे छोटे स्केल में और छोटे काम करते हैं, और सबसे बड़ी समस्या भी उन्हीं लोगों की आती है जो कि छोटे रूप में काम करते हैं. जैसे अभी प्रदीप जी ने भी बताया कि बड़े लोगों की भी बड़ी समस्या है. वो बात भी सही है कि बड़े लोगों की बड़ी समस्या है, पर छोटे लोगों की समस्या इसलिए ज्यादा है कि उनके पास में फंड रेस करने के तरीके कम होते हैं. तो अभी पीछे कुछ एक वेबिनार हो रहा था जिसमें ये बातचीत चली थी कि फैक्टरिंग मतलब बिल डिस्काउंटिंग. अगर आईसीसी और हम लोग, चूंकि ये इस मैटर पे चल रहा है कि कैसे हम अपने मैन्युफैक्चरर को बिल डिस्काउंटिंग की तरफ प्रेरित करें, जिससे कि आगे आने वाले समय में उनको बिजनेस में एक बहुत हेल्प मिलेगी. सरकार बैंकों के थ्रू जो फंड अलॉट कराएगी वो तो है, बट होता क्या है कि सारा गारमेंट का धंधा उधार, और पैसे 2 महीने 3 महीने 4 महीने से ऐसे आते हैं. तो उस समय अगर हम लोग ये फैक्टरिंग का बिजनेस, फैक्टरिंग की फैसिलिटी अगर हमारे मैन्युफैक्चरर्स के लिए अवेलेबल कराते हैं, तो मैं सोचता हूं कि वो हमारे लिए बहुत सुविधा हो जाएगी. उसमें आईसीसी भी आगे आए, और मैं इस तरह के और भी एसोसिएशंस हैं, सब लोग एक साथ मिलकर काम करें, जिससे कि हमारे मैन्युफैक्चरर भाइयों को बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी. और आने वाला समय हमारे पास में अभी तो ठीक है, हमारे पास समर तो लोग बोल रहे हैं कि निकल गया. समर ठीक है, समर निकल गया, बट क्या होता है कि समय हमारे यहाँ जुलाई तक चलता है. साउथ इंडिया में समर सितंबर तक चलता है, अक्टूबर तक चलता है, समर ही रहता है. और आगे त्योहार का सीजन है, दुर्गा पूजा आएंगी. दुर्गा पूजा, दीपावली हमारा सबसे बड़ा त्योहार है हमारे देश का. और मैं जहां तक सोचता हूं कि ये आज तक हम लोग कभी ये त्योहारों में फेल नहीं है. आने वाले समय में हम आशा ये करें अच्छे की, बुरा तो सभी सोच रहे हैं, अच्छे की आशा ये करें कि हम लोगों को ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे आने वाले समय में है. दैट्स ऑल. मैं यही खत्म करता हूं. थैंक यू आलोक जी, थैंक यू वेरी मच. और एक बात जो मुझे आलोक जी के कथन से समझ में आई कि आप ये भी देखें विच आर द रेड जोन्स अपार्ट फ्रॉम द टाइम जोन्स. रेड जोन्स, ऑरेंज एंड ग्रीन जोन्स. जिस स्टेट में ज्यादा ग्रीन जोन्स है या फिर ऑरेंज जोन्स है, और वो डिस्ट्रिक्टों में पोटेंशियल ज्यादा रहेगा, बिकॉज दे आर गोइंग टू ओपन अप फास्ट. तो जो डोमेस्टिक में बेचे, दे कैन ऑल्सो ट्राई टू प्लान एंड पुश देयर डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स. जहां आपके पास क्लियर जोन्स है, तो दे आर द प्लेसेस विच आर गोइंग टू ओपन फास्ट. और उम्मीद है कि समर काफी हद तक जा चुका है, बट यस, समर इज स्टिल देयर. वी आर गोइंग स्टिल, अभी भी पीक देखना बाकी है. बहुत बड़ा जो एक त्योहार ईद का शुरू होने वाला है, तो होपफुली वी सम शॉप्स जो है, हाई स्ट्रीट शॉप्स जो है, रिटेल दुकानें खुलने लगेगी,
और हम कुछ इसको कैपिटलाइज कर पाएंगे अगर हम राइट टाइम पर राइट माल पहुंचा सके, और अपना इन्वेंट्री तो जैसे अपने सबको रिस्ट्रक्चर करना ही पड़ेगा। नाउ वी विल मूव ऑन टू क्वेश्चंस एंड आंसर्स। एक सवाल अनिल जी के लिए है। अनिल जी, यामिनी जलान जी हैं, शी इज आस्किंग कि आपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की तो बात की है, बट इस टाइम में जो इकोनॉमिक कंडीशन है इंपोर्टिंग कंट्रीज का, इट इज वेरी स्कैरी। हाउ कैन वी बी श्योर अबाउट पेमेंट टर्म्स एंड पीपल आर नॉट वर्किंग? हमने पुश तो कर दिया, there is a big threat of bankruptcy and payments getting delayed. So what's your advice to her? Yeah, ji. Can you hear me? Yes, Anil ji, we can hear you. The concern is real and genuine, but of course we have to secure our payments. Point number one. There's a scheme by the government which says ECGC, which is export scheme. The government has to become more proactive and has to, implement this in a more stronger and a more proactive manner. The claims have to be honored, and the claims have to the whole scheme has to be made more proactive. तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा, वो इंश्योर करना पड़ेगा कि आपको ईसीजीसी में रजिस्टर करा के उसको एक्सपोर्ट्स आप करें. अदरवाइज ऑफ कोर्स देयर इज ऑलवेज अ प्रॉब्लम. आइदर यू सिक्योर योर पेमेंट थ्रू अ लेटर ऑफ क्रेडिट, और यू हैव some advance and can opt for CAD, because आपके पास कुछ एडवांस रहेगा तो CAD buyer documents claim करेगा ही करेगा. And otherwise also you have to secure yourself with the ECGC export credit guarantee, the scheme run by the government of India. But basically मैं आपको बता देता हूँ कि ये पेमेंट की प्रॉब्लम अगर यूरोप और अमेरिका में तो उतनी इंडिया में भी है. In fact, my experience is Europe, these two continents, but of course there is a real chance of payments getting stuck up, but there is a mechanism to safeguard your payments, and business थोड़ा बहुत risk तो होता ही है, but other work with a good party. If you take the credentials, there is something like Dun and Bradstreet where you can take the credit rating of your buyer. उसको लेके आपको करना पड़ेगा. You have to of course use the mechanisms available to you. You have to do your own assessment of the buyer. But normally I don't think it is going to be a huge problem. Personally, I don't feel it's going to be. Payments मैंने नहीं सुना है कि export में कभी बहुत बड़ी problem हुई. Payments are not a very, till the time you work with some genuine and solvent buyers, of course. There's one question from Mr. Anil Kariwal for the whole panel. Whoever feels like, सब panelists को request करूँगा अपने आप को unmute रखे ताकि it doesn't take time to answer. एक general सवाल है, which is the greatest fixed cost for all garmenting businesses? How to lawfully control it? I think so he means the fixed labor charges that we have जो हमने salary पर या wages पर रख रखे हैं factory में. So how to lawfully control it? Would any one of the panelists like to give any comments on that? Anil ji बोलिए. देखिए, this is a settled law that we cannot pay for the time the workers don't work. The humanitarian approach is something different. Legal approach is something different. We have an institute called Employees State Insurance ESIC coverage that we provide to all our workers. Normally, they are very solvent with a lot of funds available at their disposal. They should come forward, and that is the. If you talk about not paying people when they are not working, I think we are well within our rights, and the government cannot enforce us to make the payments while the workers not worked. Humanitarian approach is something different. I don't talk about the humanitarian approach. It will all depend upon the individual companies who want to take a stand. But insofar as legality is concerned, I don't think the government can oblige the companies to make a payment to people who have not worked, and not for the, even you have the Industrial Disputes Act. Even in the Industrial Disputes Act, there is something which is this is an act of God. During this act of God, you are allowed to retrench people. You are allowed to retrench people when there is an act of God happening there. How can if you read the whole, this is the only act which somehow
specifies the relationship between a worker and an employer, defines the relationship between an employer and an employee. And ESIC, the employee state insurance, they're flush with funds. I'm sure they will come forward and they will try to compensate for the loss that the workers are bearing. But I don't think employers can. I don't think there's an issue of legality there. Any other panelists would like to add to this? Any of the other panelists would like to add to this? I know where the government policy is important. Yeah. And government package where they will announce, they will cover all this. This is what is expected from. Yes. But insofar legal obligation, the question of Anilji was the legal of the correct doing it correctly. As far as legal obligations are concerned, employers are not obliged to make the payments to the workers when they have not worked, especially when there's an act of God happening everywhere. I'll just like to add to this. That is very. I'll just like to add to this that, of course, the fiscal package is expected, and it's expected the government will give some relief probably on ESI and PF, depending on how big or small you are. लेकिन मैं आपको एक दो बता दूं, आज 2 दिन पहले एक महाराष्ट्र में एक कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल किया है कि हाउ कैन वी पे एंड हाउ कैन द गवर्नमेंट ऑर्डर अस टू पे व्हेन दे हैव फोर्स्ड अस नॉट टू ओपन आवर फैक्ट्रीज. कर्नाटका गवर्नमेंट ने अभी 2-3 दिन पहले विड्रॉ किया अपना नोटिफिकेशन, जहां बोला गया है कि यू हैव टू पे एवरीवन इन फुल इररेस्पेक्टिव वेदर वे वर्क और नॉट. इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट कहती है you, or if you such a condition is a layoff condition, you are just bound to pay 50% of your basic wages which you are paying under the Industrial Disputes Act. अब this is a legal thing, इसमें बहुत अलग-अलग opinion आ रहे हैं. I think so you will have to fight it out if it comes to that, if the government doesn't give us enough, because ये problem जो है आपके पूरे अप्रैल ही आप समझिए लॉकडाउन में रह गया है. मार्च वॉज अ डिफरेंट थिंग, 10 दिन का पैसा था, सबने मिलजुल के कैसे भी दे दिया है. और कई कंपनीज जो कर रही है आपको बता रहा हूं, सम कंपनीज आर आल्सो कंसिडरिंग दिस एज पेड लीव और लीव से एडजस्ट कर रही है. तो अलग अलग आदमी अलग अलग रास्ता खोज रहे हैं which needs to be discussed. Anyway, I don't want to take it forward here more than this. One more question which has come up which is very important, cash flow maintain करने के लिए कोई गुरु मंत्र है क्या कोई? क्योंकि कैश फ्लो हमने सबने कह तो दिया बहुत इंपॉर्टेंट है. अब सबने अगर ये सोच लिया इंपॉर्टेंट और सब कैश पर बैठ गए तो कैश आएगा कहां से? सो बिफोर एनीवन ऑफ द पैनलिस्ट एड्स ऑन एंड कमेंट्स, मैं अपने कुछ व्यूज आपको बताऊंगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. दो वी शुड सिट ऑन कैश, हम अपनी कैश प्लानिंग करें, अपनी ऑब्लिगेशंस देखें और कुछ पैसा अपने वेंडर्स को जरूर दे. कम से कम इतना पैसा तो दे जो हमें अपने डेटर्स दे रहे हैं. अगर हमारा कोई कस्टमर हमें पैसा दे रहा है तो हमें भी अपने वेंडर्स को देना चाहिए. दूसरी बात यह है कि आपको गवर्नमेंट ने कोविड लोन करके अनाउंस किया है, तो आपको 10% तक का वर्किंग कैपिटल लिमिट का पैसा मैक्सिमम नेशनलाइज्ड बैंक्स तो इसका गाइडलाइन निकाल चुकी है, और अगर कोई नहीं देती है आप इवन आरबीआई को भी कंप्लेन कर सकते हैं. उसमें बिना मार्जिन आपको ड्राइंग पावर चाहिएगा स्टॉक्स एंड डेटर्स का. आपको 7.25% में आपको 10% ऑफ वर्किंग कैपिटल लोन मिल सकता है एज एन इमरजेंसी. इसके अलावा आरबीआई ने कहा आप अपना जो मार्जिन है डेटर्स और स्टॉक पर, दैट कैन बी रिड्यूस्ड बाय अबाउट 10% फ्रॉम व्हाटएवर इज प्रेवलेंट. यू हैव टू अप्लाई टू द बैंक. अगर बैंक बहुत कॉर्पोरेट नहीं करती है, देन यू कैन आल्सो ट्वीट टू आरबीआई, and they are also monitoring the situation. RBI Finance Ministry, kindly देखिए, tweet is a better option than emailing because उसका एक अलग डिपार्टमेंट है हर मिनिस्ट्री में देखने के लिए. उसके अलावा जो बहुत छोटे हैं आपके रिटेलर्स है, क्योंकि हमें पैसा रिटेलर्स के माध्यम से ही आने वाला है, तो जरूरी आप उनको प्रमोट करें कि वो मुद्रा लोन के लिए अप्लाई करें. हमको असिस्ट भी करना चाहिए बड़ी कंपनियों को. 10 लाख तक का आपको मुद्रा लोन मिल सकता है अगर कोई लोन नहीं लिया हुआ है. अगर वो 10 लाख का लोन लेंगे तो वो पेमेंट करेंगे होलसेलर्स को, होलसेलर्स करेंगे कंपनीज को. होलसेलर्स को भी हमें कहना चाहिए कि आप भी लिमिट्स लें, क्योंकि अगर पूरा चेन फंड करेगा तभी ये काम होगा. सिर्फ एक बड़ी कंपनी पैसे ले लेगी या मैन्युफैक्चर पैसे ले लेगी, वो सफिशिएंट नहीं होगा. सो हमें ये टाइम यूज करना चाहिए टू टॉक टू ऑल आवर होलसेलर्स,
talk to retailers wherever directly or indirectly, और उन्हें बताए कि क्या माध्यम से they can get, what are the government schemes to get money. And Vikas ji, I'll also request if ICC can also prepare a small note of what are the government schemes which can be prepared, which can be availed by the small people, because we know it, but most people don't know it. They don't know the process. कि मुद्रा लोन हुआ, COVID लोन हुआ. If we can prepare a small paper, I think so, not only for textile industry, सबके लिए एक status paper हो जाएगा, जो वो बैंक के पास जाएगा और बताएगा. Yeah. So Sushmita, I hope you've also made a note of it. So if any of the other panelists would like to add how to build cash flow and increase that velocity of money, please, any one of the panelists, if they would like to add something. कोई नहीं, आलोक जी, पैसा कैसे मंगाया? दो ही जगह से, बोलिए. देखिए दो ही जगह से पैसे आते हैं, या तो आपके होलसेलर से, आपके या रिटेलर बोलिए होलसेलर से, वहां से आएंगे, और तो उसमें कुछ और बैंक से आप लोन ले सकते हैं. बैंक में अगर आपकी ओडी लिमिट है, पूरी यूज नहीं की है, तो उसको करना पड़ेगा. जहां तक सवाल है होलसेलर का, देखिए इट्स म्यूचुअल डिपेंडेंस. जो हमको सपोर्ट करेगा हम उसको सपोर्ट करेंगे. इट्स एज सिंपल एज दैट. सो पीपल आल्सो नो, दे आल्सो वांट स्टॉक्स. अगर वो जो लोगों ने आपको सपोर्ट किया है, आपको इस वक्त अगर आप माल देते भी हैं, उसमें आपको रिकवरी में फिर थोड़ी देर होने वाली है, बट ये दोनों का एक है, और कैश का आपको ही बंदोबस्त करना पड़ेगा. The only option left is the bank. बैंक में अगर आपका ओडी नहीं है तब तो कोई बात ही नहीं. अगर ले सकते हैं तो लीजिए. इट डिपेंड्स ऑन योर बैलेंस शीट. दीज आर द थिंग. ये दो जगह छोड़ के तीसरी जगह से तो कहीं पैसा आने वाला है नहीं. ये दो जगह को कोशिश करिए. बाकी जो फिजूल खर्ची, देखिए फिजूल खर्ची वाली बात हमारे लिए लागू नहीं होती है, लेकिन बहुत से लोग हैं जो फिजूल खर्ची में बिलीव करते हैं. सबसे पहले तो उसको रोकिए. बड़ी बड़ी गाड़ियां रख रहे हैं, बड़े बड़े ऑफिस रख रहे हैं, 4 तो एसी चला रहे हैं, 4 तमाम चीजें कर रहे हैं, तो थोड़ा सा उसको तो भाई साहब अब थोड़ा वक्त बदल गया है. लेबर को आपको सपोर्ट करना, जिस तरह लेबर का भी आपका है, आप जिंदा, आप उस पर जिंदा है. कहीं पर एक मिड पॉइंट पे ला करके सबको इस वक्त इस इतने मुश्किल दौर में सबको एक दूसरे की सहायता किए बिना, हम सरकार की भी कह रहे हैं, सरकार को भी हमको सपोर्ट करना चाहिए, तो सरकार को सपोर्ट करना चाहिए. दैट्स ऑल. और प्रदीप जी के एक बात और ऐड करूंगा, काफी पैसे आपको अंदर से भी मिल सकते हैं. अगर हर एक आदमी अपने लॉकडाउन में अपना स्टॉक एनालिसिस करे कि कितना स्टॉक 6 महीने से पुराना है, कितना पुराना है, तो उसमें से भी वो स्टॉक रिस्ट्रक्चर कर सके, तो बहुत पैसा हमें 2-3 महीने में अंदर से जनरेट हो सकता है. और बैंक का पैसा भी, लोन भी इंक्रीज होगा, विच कैन बी यूज फॉर बेटर पर्पसेस. एक जन का सवाल है, वो प्रूडेंस मैनेजमेंट ऑफ. यस, हेलो, यस, एक जन का सवाल है, हाउ डू वी प्रूडेंट मैनेजमेंट ऑफ योर स्टॉक एंड will have to be done, as simple as that. There's one question which has come up from sorry, I missed out the name, कि जो wages और labor का payment है, क्योंकि state भी involved है, तो we should represent to the state also about the problem. ICC is already representing it, various associations are also already representing it, both at central and state level. और request है कि जो भी association वाले यहाँ हैं, वापस से state को लिखे कि ये हमारी प्रॉब्लम है, there is no cash flow, no revenue flow, how do we pay our workers, please help us at least for lockdown period by providing some sort of assistance, maybe a wage subsidy or something. अभी किसी स्टेट ने ऐसा कुछ किया नहीं कि हम एग्जांपल दे सके, लेकिन we can request our state government also कि वो कम से कम कुछ मदद स्टेट से मिले, कुछ सेंट्रल से मिले, कुछ हम खुद करें. हम तीनों, we are 3 partners, तीनों को मिलकर ये वेज सब्सिडी बिल, वेज बिल को उठाना पड़ेगा. हम किसी को भूखा तो नहीं मार सकते हैं, मिनिमम वेजेस तो देने ही पड़ेंगे. तो हाउ इट कैन बी मैनेज्ड, ESI का जो इशू है, टेक्निकली लीगली अनलेस द गवर्नमेंट चेंजेस, it's going to be difficult for ESI to just dole out funds unless someone technically goes on strict leave and shows the doctor prescription कि मैं sick पर था, तब उसको 50% ESI दे सकती है. Another question which I throw open to the panelists is, what's the best plan to utilize our time for this lockdown period to grow our future business? कोई out of box ideas हो कि आज का जो entrepreneur है, चिंता करने के सिवा और क्या कर सकता है to make sure that when he joins in, gets back to real life, how can he be a better person, a better company, and grow his business?
So any ideas from the panelists on this? One idea each. It would be nice if each panelist can give one idea each. Because one thought from you. I think proper planning is required in our day-to-day life. Once we get into business, we don't have time to do proper planning. So this is a good time where we can cut down the cost, what kind of right inventory is required, where down will be required. So a sound plan is very important with your team. Is probably. Yeah. So planning is the time you should need to start planning yourself. और आलोक जी आप कोई एक वन पॉइंट सॉलिड पॉइंट जो आप कर रहे हो या सोच रहे हो करने की? अभी तो मैं यही समझ, जो स्टॉक्स है हम लोग, हाँ हमारे पास जो स्टॉक्स है हम लोग उसको इवेल्युएट करें कि हमारे पास क्या स्टॉक्स और क्या चीजें बिक रही है, क्या स्लो बिकती है, क्या फास्ट बिकती है। जो कि जब मार्केट अच्छा रहता है तो हम लोग इस चीजों पे सोचते नहीं है। अगर हम इन चीजों पे सोचें कि कौन से प्रोडक्ट फास्ट बिक रहे हैं, कौन से स्लो बिक रहे हैं, और उसके ऊपर हम अपना ध्यान केंद्रित करके आगे की प्लानिंग करें, तो आई थिंक वो हमारे लिए बहुत बेहतर होगा। थैंक यू। अनिल जी, वन सॉलिड पॉइंट सर। सर मैं तो आई रीड अ लॉट। ओके। और since I am to export business, I speak a little bit. I'm trying to brush it up and use my time doing that. तो मैं तो ये एडवाइस करूंगा, मैं तो एक ही बात सीखी है, the more you read, the better you get as a person, as a entrepreneur, as a very valid point. Reading is read. Reading is very important, and people who can't read, there are a lot of webinars also going on. बहुत लोग पढ़ने की हैबिट में नहीं है, बहुत से ऑनलाइन कोर्सेज है, डिजिटल, इवन हार्वर्ड इज रनिंग 67 फ्री कोर्सेज जो आप लोगों ने व्हाट्सएप पे देखे होंगे, स्टैनफोर्ड इज रनिंग। तो अपने लाइक मार्केटिंग, डिजिटल, व्हाटएवर यू लाइक ऑनलाइन, बिकॉज अ लॉट ऑफ अस विल नीड टू improve our online portfolio. So please use this time to read, to learn, and to expand the bandwidth and scope of your whole knowledge base. Pradeep ji, aap hain? Would you like to add any point? One. Can I talk? Yes. बोलिए जल्दी। एक सवाल किसी से आया है कि हाउ कैन बी प्लान द प्रोडक्शन पोस्ट लॉकडाउन। नाउ इस पे थोड़ी बातें आ चुकी, बट स्ट्रेट एंड सिंपल है। जिसके आपके ऑर्डर ज्यादा हैं, जिसके आपकी शेयर उसको ले, जिसके आपके ऑर्डर कम है या मार्जिन कम है उसको कम कर दें, फर्स्टली। सेकेंडली, आपकी सेल कुछ तो गिरेगी, 25% to 50% depends on item to item. So this assessment you will have to make in your own product कि आप क्या करना चाहते हैं। I would just like to add, प्रदीप जी ने जो पॉइंट बोला कि असेसमेंट है कि सेल जो है इस साल टेक्सटाइल की 25 से 40% डाउन रहेगी डोमेस्टिक में। सो आप, आई नो वी नीड टू बी ऑप्टिमिस्टिक, बट वी डोंट नीड टू बी फूल हार्डी। आप ये नहीं है कि अपना सोचे मैं तो कुछ भी करके अपनी सेल कर लूंगा। अपनी प्लानिंग उस हिसाब से करें। हाईली प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स, फास्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स को पहले प्लानिंग करके बनाएं। फिर अगर लगता है आपके पास कैपेसिटी है जो आपको यूज करना अनिवार्य है, then you move on to the last 25% of your production, ताकि even if you sale कम हो, वॉल्यूम कम हो, but profit उस हिसाब से affected नहीं हो। और अपने सब सेल्समैन से बात कीजिए, उनका परफॉर्मेंस एनालाइज कीजिए and tell them, देखिए realistically आपने क्या किया, now is your time, either you do it, everyone has to work at 120, 125 to 150% efficiency if he needs to retain his job, if he needs to retain, because slow performers को, और इंडिया में अपने को सबको पता है इनएफिशिएंसी से ज्यादा मन मर्जी लोग काम नहीं करते। तो मन मर्जी वालों को तो हमें डेफिनेटली कहना पड़ेगा कि अब आपको काम करना पड़ेगा, घर पर बैठे मार्किंग करने से नहीं चलेगा। So that's the message. Everyone should consider selling online in future, which I think so is very valid. किसी ने कहा है, any best book on textile you would recommend? I don't know. Would anyone like to suggest any book on textile which comes to their mind? I can't think of anything on textile as such, but there are books on marketing. There are simple books. I will just. अभी तो प्रॉब्लम क्या, आप Amazon से किताब खरीद भी नहीं सकते हैं।
आपको ऑनलाइन किंडल वर्जन खरीदना पड़ेगा। एक सिंपल किताब मैं बताऊंगा जो मैंने 15 साल पहले पढ़ी थी, जिसने मुझे बहुत प्रभावित किया। इट्स अ बुक कॉल्ड हु मूव्ड माय चीज। इट्स रिटन बाय इट्स अ बेस्ट सेलर, मोर देन 20 मिलियन कॉपीज हैव बीन सोल्ड। सिर्फ 60-70 पन्ने की किताब है, हु मूव्ड माय चीज, एंड इट बेसिकली टेल्स यू हाउ इंपॉर्टेंट चेंज इज। बदलाव कितना अनिवार्य है, और हम चाहे या ना चाहे बदलाव तो आना ही है। हम बॉक्स के अंदर अगर चाहेंगे हम बॉक्स से आउट नहीं होंगे, तो बॉक्स हमें छोड़ के चली जाएगी। सो इट्स आवर चॉइस वेदर वी वांट टू चेंज और नॉट। और ये अपने में टॉपिक है। आई हैव स्पोकन ऑन आउट ऑफ बॉक्स। अगर मेरे फेसबुक पेज पे जाओगे, पूरा 1 घंटे का आपको लेक्चर मिल जाएगा ऑन आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। Any other questions, anyone, or any last comments, anyone? We've almost spent. There's more yeah. recommendation of the book on the Yeah. chat, which is Pinch of Salt, Yeah. which you can't say. Well, that's a book I've written, A Pinch of Salt in the recipe called Life. मेरे लिए बोलना embarrassing है, but yes, I think so. It's a book which everyone can pick up and read. Yeah, Anil ji बोलिए. Sanjay ji, can I come? Please, please. I see a question from जिसमें उन्होंने लिखा है कि स्टॉक ये एक्सपोर्ट ऑर्डर्स कैंसिल हो रहे हैं। मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, if they can share the name of the buyers with AEPC. What we have done at AEPC is that we have taken up the case directly. AEPC, the Bangladesh Garment Manufacturers Association, and the Sri Lanka Garment Manufacturers Association, they've all come together against such cancellation of orders. तो अगर वो शेयर करेंगे डिटेल्स, the chairman will directly speak to the customer, talk to him politely. अगर वो फिर भी कुछ ऐसा cancellation करता है, the 3 countries have decided to blacklist such, create a list and blacklist such customers. So किसी को अगर ऐसी कोई problem हो रही है, तो just a message that I want to share with everyone. The AEPC is quite proactively, and they have reversed the decision of a lot of. They have got the decision reverse of a lot of. H&M ने अपना decision reverse कर लिया है, C&A ने अपना decision reverse कर लिया है, Inditex ने अपना decision reverse कर लिया है. Nobody is cancelling the order because of the efforts taken up by the council. तो अगर किसी को कोई इस तरह की problem है, तो he can always get in touch. AEPC के अगर कोई member नहीं है, तो अनिल जी से contact कर सकते हैं। अगर किसी को प्रॉब्लम है, ICC के पेज पे डाल दे, we will get you in touch with AEPC. Mr. Dasgupta is also the local representative full time for AEPC कोलकाता। पर ये देखिए, एक बहुत सुंदर बात है कि कैसे competitors बांग्लादेश, श्रीलंका एंड इंडिया have got together to fight it out। और जब 3 जन जुड़े, तो buyer is more worried। अगर सिर्फ इंडिया जाती तो बोलते मैं बांग्लादेश या श्रीलंका से ले लूंगा। So I would like to congratulate AEPC, and we know Anil ji is a very important member. Thank you so much. Anil ji, you wanted to add something? There is another question I see from Mr. Sunil कि चाइना से तो वापस से माल लेने लगेंगे। ऐसा नहीं होगा। अभी तक तो होता था, people were sensitive to prices, but I've already seen this movement happening. पहले भी, because China was getting more and more expensive insofar as garmenting is concerned, the migration was happening, but it will happen more so now. न्यूजीलैंड में आई रिसीव्ड बायर्स, उन्होंने मेरे को ऑब्लाइज किया है, उन्होंने कहा कि चाइना का कोई कंपोनेंट हमारे गारमेंट में नहीं होना चाहिए। दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस। New buyers have told me that there is no component manufactured in China, and that is pre-COVID, almost when it was restricted to Wuhan, and I'm talking about that time, and the sentiments are very strong, very strong. You please don't compare. एक और मैं बात बोलना चाहूंगा संजय जी, मेरा एक एक्सपीरियंस अभी नोएडा में है। किसी ने कंप्लेन किया, पुलिस में FIR रजिस्टर की अगेंस्ट नॉन पेमेंट ऑफ वेजेस, और उस FIR के अगेंस्ट में समन्स इशू हुए फैक्ट्री वाले को, बट द होल नोएडा क्लस्टर केम टुगेदर एंड सेड if this summon is issued, even after the lockdown is over, we will not open the factories, and they had to take back the summon, and they had to take back the complaint. This is the power of unity. This is the power of associations coming together. I see that Committee Mull also, because we were talking yesterday, that there's an absolute necessity for all the associations to come together. ये अभी सबसे burning जो problem अभी trade की है, वो wages and salaries की है, जो करना पड़ेगा लोगों को. Thank you. बहुत सारे comments आए हैं, echoing what Anil ji has said, that we need to get united and represent our matter to the government.
At the national level, APC is also part of it. City, which I was chairing earlier, हमने National Committee on Textiles and Clothing बनाई है. हमने single letterhead पर 15 association, including all EPC and national organization, CMI, etc. City, हमने सब government को represent किया है. I think so at Bengal level भी बहुत लोग का ये request है. And Vikas ji, who is the senior vice president of ICC, I think so Vikas ji, we should ICC should take a lead for textile, and our committee includes all the major associations के president or secretary in our committee. We can expand this committee and we can probably call a ICC textile committee meeting जहाँ सब association के representatives रहेंगे, and then we can take a common cause which can then be taken down. So a very good point, and ICC will take an action on हम एक या दो दिन हम committee meeting call करते हैं as a first step to note down the points. Sushmita, please make a note of this because we need to get everyone together. So let the Indian Chamber of Commerce, which is the only national chamber headquartered in Calcutta, and we also have access to the central level. So we can also use our good officers to represent to the Commerce and Textile and Finance Ministry. We'll get everyone on the same platform, or जो भी concerns है, we will try to address it at both state and central level. Any other questions or any other answers? Anyone? There are a lot of them coming up. किसी ने कहा rentals पर, has there been any talk regarding rental suspension? Anyone, any of the panelists would like to comment on rentals? कोई कुछ बोलना चाहेगा? अनिल जी बोलिए. देखिए ये तो एक mutually acceptable situation होनी पड़ेगी, because you know I am on the other side of the table where I have rented out properties. So receiving end, and of course I do appreciate and understand कि अगर लोग काम नहीं करेंगे तो rent कहाँ से देंगे? So you have to mutually, you know, talk to your landlords and come to. I don't think government can come out with a regulation there telling the landlord. Yes. Not In fact, हमारे honorable chief minister ने कहा भी था, नबाना की मीटिंग में ममता जी ने कहा भी था, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, कि आपका प्राइवेट मैटर है, और इवन एट द सेंट्रल लेवल भी यही कहा आपका प्राइवेट मैटर है, आप अपने लैंडलॉर्ड से बात कीजिए, सेंड देम अ लेटर एंड म्यूचुअली डिसाइड समथिंग व्हिच वर्क्स फॉर बोथ, क्योंकि देखिए उनके भी इंटरेस्ट पेमेंट्स हो सकते हैं, हमारे भी है, एंड आई नो मेनी लैंडलॉर्ड्स बैठ के म्यूचुअली अग्रीएबल सिचुएशंस ढूंढ रहे हैं. लेट्स नॉट बी ऑन आइदर साइड कि हम नहीं देंगे या हमें देना होगा. Let's find a midway solution. That would be my advice. एक और important point, Sanjay ji, I am chipping in. Yes. Everybody is talking about invoking force majeure. Yes. We should be very careful about invoking force majeure, because it could be receiving end जब हमारे payments की बात आएगी तो, you know, so कोई भी लोग, everybody is talking about invoking force majeure, और हम लोग rentals नहीं देंगे, हम लोग क्रेडिटर्स को पेमेंट्स नहीं देंगे या कुछ भी, ये बहुत यू नो सेल्फ डिफीटिंग हो जाएगा, ये साइकिल पूरा नहीं चलेगा. थोड़ा थोड़ा करके प्लीज मेरी तो यही रिक्वेस्ट है कि बी वेरी केयरफुल बिफोर यू इन्वोक दिस क्लॉज, बिकॉज वी विल बी वेरी मच एट द रिसीविंग एंड फ्रॉम आवर डेटर्स, एंड पेमेंट्स विल नॉट कम इन, एंड दे विल यू नो डू द सेम, एंड मोस्ट ऑफ अस वी ऑल नो दैट डेटर्स आर मोर देन क्रेडिटर्स, और ये पूरा साइकिल कोलैप्स हो जाएगा, बिजनेस एकदम कोलैप्स हो जाएगा. वी ऑल हैव टू टेक अ ग्रेटर व्यू वेयर वी कीप द साइकिल going and moving. थोड़ा थोड़ा क्रेडिटर्स को देते रहे, थोड़ा थोड़ा डेटर्स के पास आते रहे, और फोर्स में वो करके पूरा बिजनेस इकोसिस्टम को नहीं करे. This is something very important, and I don't know if somebody has some views. I would like to hear them. कोई संजय जी आपके कोई views हो? Because there's something. I fully agree. It's a double-edged sword कि जब आप बोलते हो फोर्स मेजर, और हमें फाइट भी करना होगा, क्योंकि जैसे एक्सपोर्ट कस्टमर्स थे, we fought and said कि फोर्स मेजर है. But if they hear that हम अपने फैब्रिक और यान वालों को फोर्स मेजर कर रहे हैं, और अगर हम कैंसिल कर रहे हैं, एंड बिलीव मी आजकल बाजार में कुछ छुट्टा नहीं, अगर आपके 4 लेटर उनके हाथ में आ गए तो बोलेंगे when you are doing it, what right do you have to tell us? So we need to balance things. Everyone is in trouble. मैं यही कहूंगा कि सब कोई मिलजुल कर कॉर्पोरेशन के साथ, अगर आपको 100 रुपए देने, आप 10-10 रुपया करके दीजिए ताकि उसका भी घर चले, और ऐसे ही आपके कस्टमर भी आपको दे, ताकि रोटेशन बहुत जरूरी है शुरू होना. अगर रोटेशन शुरू नहीं होता है, और हमें फंडिंग के सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना होगा, जहां से भी पैसा मिल सकता है, बैंक से, एनबीएफसी से, एक बार हमें पैसा लेना पड़ेगा, सपोर्ट करना पड़ेगा. अगर हम कैश डिस्काउंट लेकर भी पेमेंट कर सके तो किसी को बहुत बड़ा हेल्प होगा. तो इफ वी हैव मनी वी कैन ऑफर पेमेंट्स ऑन कैश डिस्काउंट्स आल्सो.
So please try to get money. हम गवर्नमेंट को काफी चीज सजेशंस हैं, गवर्नमेंट को ऑलरेडी बहुत सारी चीजें सजेस्टेड हो चुकी है. मैं खुद कम से कम 2 से 3 घंटा एवरी डे सेंट्रल गवर्नमेंट से मीटिंग में बिता रहा हूं, एट CII लेवल, फिक्की लेवल, एट ऑल टेक्सटाइल एसोसिएशन लेवल. कल नितिन गडकरी जी के साथ भी हमारी MSME फोरम की भी मीटिंग थी ऑल इंडिया की. He gave us 2 hours to listen to problems. Though not only textile, सभी थे वहां पर. नितिन गडकरी जी ने साफ कहा है कि मुझे पता है MSME की क्या दिक्कतें हैं, आप लोग निश्चिंत रहिए, मेरे पास जो भी लास्ट बेस्ट पॉसिबल होगा टिल द लास्ट आयोटा मैं कोशिश करके कराऊंगा MSME के लिए. बट थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स है. किसी ने कहा है फोर्स मेजर से आप रेंट नहीं बचा सकते हो, विच इज ट्रू. आप फोर्स मेजर नोटिस आने से भी आपको बैठ के सेटल करना पड़ेगा. मैक्सिमम थिंग्स हमको बैठ के सेटल करनी पड़ेगी. और सबसे बढ़िया बात है, स्टाफ हो या कस्टमर हो या वेंडर हो, सब प्रॉब्लम को समझ रहे हैं और सब कह रहे हैं, बैठने के लिए तैयार है. इवन स्टाफ लोग सजेशन दे रहे हैं, सर आप हमारी सैलरी कुछ कट कर दीजिए. इवन स्टाफ कह रहे हैं हमारी ट्रैवलिंग अलाउंस से, ये पहली बार हुआ होगा कि आपके जिनको मिलना है, जो 30, 40, 50 हजार रुपया कमा रहे, वो भी कह रहे सर कुछ हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं, हम सर एक्स्ट्रा दिन काम करेंगे, सर आप कुछ हमारा DA कम कर दीजिए, सर हम थोड़ा हल्का रह जाएंगे, हल्का ट्रैवल. तो ये बहुत बड़ी बात है, ये यूनिटी की बहुत बड़ी बात है. और लास्ट में काफी समय हो गया है, वी हैव डन ओवर 1 hour एंड आई नो क्वेश्चंस विल नेवर एंड. बट very important thing I leave with all of you कि we have a big opportunity in China. गवर्नमेंट को हमने इसके बारे में फुल्ली अलर्ट किया है कि अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, और जो अनिल जी ने कहा अगर हमें चाइना का एक छोटा सा परसेंटेज भी मिल जाता है तो यहाँ किसी को फुर्सत नहीं होगी 3 महीने बाद में बात करने की, और आप ये खोजेंगे कि माल कौन बना के दे सकता है. तो जो लोग की थोड़ी बहुत भी कैपेबिलिटी है एक्सपोर्ट करने की, थोड़ा सा फैक्ट्री में थोड़ा सा दम का है, kindly start looking out and briefing yourself up, making yourself ready, because sampling होगी, फिर ऑर्डर आएंगे, इसमें एक टाइम लगता है. कल एक जन ने बताया, कल अभिषेक जी सिंघवी जो एक बहुत बड़े लॉयर है, उन्होंने कहा इवन इफ यू हैव टू पे वेजेस on under disaster management as the government has issued, post measure is not applicable on payments, it's only for performance of contract. This is another thing coming कि सिर्फ अगर कॉन्ट्रैक्ट है जिस पर आप नहीं परफॉर्म कर सकते हो तो फोर्स मेजर आता है. बोनस पेमेंट की बात हो रही है, सरकार को रिक्वेस्ट किया कि इस साल बोनस को कंपल्सरी ना रखा जाए क्योंकि सबको ऑलरेडी बैठा के लेबर को पैसा देना है. ये सारे कंसर्न्स है. It will take another 10 to 15 days to see what the government announces. So I would request that आप लोग सब वेट करें. अप्रैल की सैलरी के बारे में अभी ना सोचें, अभी भी हमारे पास 15 से 20 दिन है. सरकार कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट करेगी और हम फिर उसको रिप्रेजेंट करेंगे अगर हमें ये इनसफिशिएंट लगा. So we'll close this session. Thank you for being here. It's nice to see कि 75 we are very sorry Facebook के कारण शायद काफी लोग नहीं जुड़ पाए. मेरा रिक्वेस्ट है अगर आप लोग हमने रिकॉर्ड तो किया है, आई विल सी अगर पॉसिबल होगा इसको फेसबुक पर लिंक देने की तो कोशिश करूंगा. बट आप लोग जो आज ज्वाइन किए हैं, प्लीज शेयर व्हाट एवर वी हैव डिस्कस्ड विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड इंडस्ट्री पीपल. एंड आप अपने एसोसिएशन लेवल पर भी मेंबर्स से शेयर करें जो मेन पॉइंट्स है. एंड वी लुक फॉरवर्ड इफ रिक्वायर्ड क्लोज जस्ट बिफोर May 3rd लॉकडाउन, जब खुलने की पोजीशन पूरी बनती है तो मे बी विल डू अनदर वेबिनार जब सब में एक नया जोश होगा कि अब हम बस निकलने वाले हैं काम पर और क्या नई स्ट्रेटेजीज होगी, तब तक काफी कुछ क्लियर हो जाएगा. एंड थैंक यू वंस अगेन एवरीवन. Sorry for the FB live glitch, but thank you for everyone who very fast joined on to Zoom. We have consistently 70-75 से 85 लोग 1 घंटा हमें patiently सुने हैं without any exits. So thank you and Jai Hind. Have a nice day. Enjoy your weekend. Thank you. Thank you.